So the last time we started talking about depreciation. Okay. So in this class we'll begin with depreciation cases. We are through with payroll cases. Any one of you have any doubts about the payroll case that we have done in the last class? वी लुकअप वाला फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हैं सर, जहाँ पे इफ वाला करेंगे? Yes, definitely. So what I have noticed is that if you use the VLOOKUP function, then it is much better. You have to write less things in the Excel formula. So here I guess we use the VLOOKUP function in the basic salary. So here I wrote about the VLOOKUP function. If you have any doubts about the VLOOKUP function, we can also discuss it again, right? Let me know. So let us start with the depreciation cases today. Let me open up the case. So I have shared this file with you on your WhatsApp group. You can have a look at it. Okay. So let us do a recap of what we understand by depreciation. All right. So depreciation is an expense or a revenue? Simple question. Sir, expense. Expense. Okay. So it's a expense that we have to make. So an expense is anything which reduces our profits, and we have to account for depreciation very accurately, because depreciation can reduce our profits to a large extent. So what are the two methods that we apply to calculate depreciation? So, written down value method and straight value method. Okay. So one is called the written down method and another is called the straight line method of depreciation. What is the other name for written down method? Diminishing balance. Diminishing balance method. Okay. So if I had to differentiate between the two methods of depreciation, how would I be able to differentiate? SLN में खास क्या है और diminishing balance method में खास क्या है? Sir, in SLM, the depreciation is charged on the original cost of the asset, whereas in WDV method, we charge the rate of depreciation on the written down balances, on the balance brought down. Like every year, we change the depreciation. Right. So straight line method में हम depreciation calculate करते हैं तो that is sort of fixed for every year. We calculate it at the start when we purchase the asset, and then we apply the same amount of depreciation every year. In the diminishing balance method, we have to look at the balance every year and apply a rate of depreciation. Okay. Now that we know about these two methods in terms of the differences that they have, we have to now use Excel to calculate the depreciation that we will charge. So let us look at the case 1, and it shows that
It says prepare a spreadsheet in MS Excel which accepts cost of asset, life of asset, rate of depreciation, and months in first year as input and produces a comparative schedule of depreciation. There is a term here which is called months in first year. Can anyone guess what it is about? मंथ्स इन फर्स्ट ईयर का क्या मतलब निकालेंगे? जनवरी फरवरी। ये तो मंथ्स हो गए, मंथ्स इन फर्स्ट ईयर से कैसे समझेंगे? डेप्रिसिएशन के मामले में मंथ्स इन फर्स्ट ईयर इतना स्पेशल चीज क्यों है? ओके, सो डेप्रिसिएशन हमें पूरे साल के लिए अप्लाई करना होता है, राइट? बट व्हाट इफ वी परचेज द एसेट इन द मिडल ऑफ द ईयर? जब 6 महीने बीत गए हैं तब डेप्रिसिएशन अगर हमें चार्ज करना हो उस साल के लिए तो कितना करेंगे? साल भर के लिए करेंगे या 6 महीने के लिए करेंगे? 6 months. 6 months। 6 months के लिए, राइट? सो we understand that whenever we purchase the asset, right, we have to note down in which month of the year we have bought it so that we can apply it for that time only. ठीक है? तो अगर मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है और मैं जनवरी में कोई एसेट खरीदता हूं, तो मुझे पता है कि मुझे सिर्फ इस साल 3 महीने के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट? नाउ यूजुअली द लाइफ ऑफ अ एसेट इज इन ईयर्स, 10 साल, 12 साल, 15 साल. Now if I use the asset for only 3 months in the first year, तो मेरा ये एसेट कितने सालों तक चलेगा? अगर मैंने पहले साल में 3 महीने के लिए ही एसेट को यूज किया है तो इफेक्टिवली मेरा एसेट 12 साल चलेगा, 12 साल से ज्यादा चलेगा या 12 साल से कम चलेगा? Life of the asset is 12 years. So what would be your answer? More. More, yes. क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ 3 महीने के लिए यूज किया, यानी 9 महीने और यूज कर सकते हैं, तो इफेक्टिवली हमको 13वें साल में भी एसेट को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है? तो मंथ्स इन फर्स्ट ईयर affects not only the depreciation in the first year, it also affects the depreciation that we charge in the last year of the asset. Right? Everyone understood that? Yes, sir. All right. तो अब एक्सेल शीट बनाना शुरू करते हैं so that we can look at it in terms of calculations. So the first thing that we have to start with is the heading of the sheet. So we write comparative depreciation schedule. जो पहली चीज हमें सबसे कंसिडर करनी है वो है कॉस्ट ऑफ द एसेट. The next thing that we need is life of asset. कितने साल के लिए ये एसेट हम यूज कर सकते हैं. And then we have something called salvage value. What do we understand by salvage value? The scrap value. Scrap value. You have just replaced the term. मैंने बोला salvage value, you said scrap value. मतलब क्या है?
What do we understand by salvage value? Salvage value का क्या करते हैं? So जिस प्राइस पे एसेट बिकेगा आफ्टर इट्स फुली डिप्रिशिएटेड. Right. So after the useful life of asset, at what price we will be able to sell the asset? That is your scrap value or salvage value. The last input that we need is months in first year. कितने महीनों के लिए हमने पहले साल में यूज किया है? So since we are starting the question, we need some hypothetical values. So let us put 10 lakh in the cost of asset. Then let's suppose we have the life of asset as 12 years. तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने 12 एक सेल में लिखा है, दूसरे सेल में years लिखा है, so that I can feed this value 12 in the formula. The next thing that we need is your salvage value. कि कितने में बिकेगा? Let's suppose we will sell it for 1 lakh. Now comes your months in first year. So months in first year की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम तो 12 हो सकती मैक्सिमम 12 हो सकती है, यानी कि हमने मार्च 31 के बाद ही एसेट को खरीद लिया, अप्रैल के महीने में ही खरीद लिया और पूरे 12 महीने यूज किया. और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? है 1. राइट. कि मार्च 31 जब आया तो मार्च के महीने में ही हमने एसेट को खरीद लिया. सो दैट मीन्स कि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में हम एक डेटा वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं कि इसमें 1 से 12 की ही वैल्यू डाल सकते हैं. ठीक है. तो 1 से 12 की वैल्यू यहाँ पे आए हमेशा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं. सो हम जाएंगे डेटा टैब में, वी विल क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन बटन एंड नाउ वी कैन हैव अ लिस्ट. तो लिस्ट में हम लिखना शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. प्रेस ओके. सो नाउ यू विल सी कि हमारे पास 1 से लेकर 12 तक की वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं और हम उनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी शीट कौन यूज करने वाला है, तो हो सकता है किसी के लिए मंथ्स इन वैल्यू मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 1 होगा, किसी के लिए मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 12 होगा. राइट. सो वी प्रोवाइड अ चॉइस. नाउ वी गो बैक टू द क्वेश्चन. Question says that in the following format we have to show the output. तो हमें एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है SLN यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, और दूसरा फिक्स्ड अकाउंट बनाना है DP के मेथड के हिसाब से. ओके. सो हम अब ये टेबल्स बनाना शुरू करते हैं. सो वी नीड 4 कॉलम्स: ईयर, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस. एक रो में एक साल का कैलकुलेशन आएगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना डेप्रिसिएशन लगाया, और तीसरी बात कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा उस साल के एंड में. ओके. सो हियर आई विल स्टार्ट विद फिक्स्ड एसेट अकाउंट ब्रैकेट में SLN. Here I will write year, then opening balance, then depreciation and closing balance. Okay. So
The first column that we have to start calculating is the year column. तो ईयर में हमें पता है कि लाइफ ऑफ एसेट यहाँ पे बताई हुई है 12 साल। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक सारे के सारे नंबर्स सीरियल वाइज फिल करेंगे। तो कैसे फिल कर सकते हैं? 1 2 से शुरू करिए एंड देन यू कैन यूज द ऑटो फिल फीचर ऑफ एक्सेल फॉर गेटिंग ऑल द अदर नंबर। सारे नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है, 1 से 12 हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर्स आ गए। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा? सर 10 लाख। 10 लाख। तो यहाँ पे 10 लाख हमको टाइप करने की जरूरत नहीं है, जितना कॉस्ट ऑफ एसेट वाले सेल में लिखा हुआ है उतना ही हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम ओपनिंग बैलेंस के सामने जो पहली रो है उसका सेल है उसमें इक्वल टू लिखकर इस सेल को रेफरेंस में डाल देंगे, सो दैट वी स्टार्ट सीइंग 10 लाख एज द बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, नाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, हमको ये एक्सेल में एक बेनिफिट ये है कि ये डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मूला प्रेजेंट है। तो हमको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना है, वी विल यूज द फॉर्मूला कॉल्ड SLN। तो आप टाइप करेंगे SLN, तो एक SLN नाम का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। अब SLN की फॉर्मूला में हमें कितने इनपुट नजर आ रहे हैं? Sir, 3. So we can now add these inputs in the formula. So first is your cost. तो हमने C4 को डाल दिया जिसमें हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट है। सैल्वेज में हमने सैल्वेज वैल्यू वाले सेल को रेफरेंस में डाल दिया, और एंड में हमारा लाइफ का जो सेल है जिसमें 12 इयर्स लिखा हुआ है हमने उसे रेफरेंस में डाल दिया। So now you will see that the cell has now showing 75,000 as the depreciation. तो क्या ये depreciation सही कैलकुलेट हुआ है? Can we say the depreciation is rightly calculated? My hint over here is on this cell. नो सर। नहीं ना, क्योंकि SLN के फॉर्मूले ने क्या किया, पूरे के पूरे साल के लिए जितना डेप्रीसिएशन हो सकता था, अगर हम 12 महीनों के लिए यूज करते हैं एसेट को, तो 75,000 दिखाया है। ठीक है, बट वी हैव सिंस ओनली यूज्ड द machine for 10 months only, we have to make a adjustment to the formula. तो क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस SLN के फॉर्मूले में? Any ideas? What can we adjust in the formula? क्या हम इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास सही 10 महीने की वैल्यू आ जाए? देखो 12 महीने का डेप्रीसिएशन निकालता है ये फॉर्मूला, मुझे 10 महीने का निकालना है, तो क्या करेंगे? पांचवी क्लास की बात है, 5th क्लास, एक चैप्टर होता था रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, अगर याद हो तो। मैं इस SLN के फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास 10 महीने का डेप्रीसिएशन आए? इनटू 10/12। राइट, तो हमारे को कैलकुलेट करना है 10 महीने का, और ये है 12 महीने का। तो एक महीने का निकालने के लिए डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय 12, 10 महीने का निकालने के लिए मल्टीप्लाई दैट पर मंथ डेप्रीसिएशन बाय 10। ठीक है,
इसीलिए आपने कहा 10/12। तो जिस सेल में 10 लिखा हुआ है मैं उसको सोर्स कर सकता हूं यहाँ पे C7, बिकॉज हो सकता है इस केस में 10 महीने था, किसी और केस में कुछ और हो जाएगा, तो C7 में वैल्यू चेंज हो सकती है, इस वजह से हम C7 लिखेंगे यहाँ पर रादर देन 10। एंड देन क्योंकि 12 ही महीने होंगे हमेशा साल में, तो यहाँ पर हम 12 ही लिखेंगे। एंड वंस यू मल्टीप्लाई दिस you will get the right amount of depreciation. Okay? अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालें? ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन वाला सेल, दैट इज F4 माइनस G4, और आपका ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे सामने आ गया। अब सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? सर 9,37,500। जो हमारा फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहां पर सोर्स कर देंगे H4 को, ताकि वी गेट द राइट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान रखिएगा, हमको मैन्युअली टाइप नहीं करना है, हमें शीट को ऐसा बनाना है ताकि वो अदर यूजर्स अदर केसेस के लिए यूज कर पाए। ऑटोमेशन की बात है सारी। अब डेप्रिसिएशन के लिए हमें वापस SLN फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे SLN का फॉर्मूला डालेंगे, वापस से कॉस्ट को डालेंगे, और इस टाइम हम कॉस्ट को फिक्स कर देंगे। सैल्वेज वैल्यू फीड करेंगे, फिक्स कर दीजिए। लाइफ को फीड करेंगे, फिक्स कर दीजिए। अब क्या हमें इस साल कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? Do we need to adjust the depreciation for second year? No, sir. नो No, because second year से तो हम assume कर रहे हैं कि पूरा का पूरा 12 महीने हमने यूज किया। We see 75,000। उसी तरीके से हम वापस ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। So now here you can see कि सेकेंड ईयर का हमारे पास रो कंप्लीट हो गया। तो अब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से लेकर 12वें साल तक चीजें बदलने वाली नहीं है। ठीक है, हमें 12 साल के लिए एसेट यूज करना है, तो 12वें साल तक हम क्या कर सकते हैं, हम इस सेकेंड रो को ही ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो 12वें साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 1,12,500। क्या ये सही है? कितना आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस आइडियली? So 1 lakh. 1 लाख आना चाहिए, राइट? क्योंकि सैलवेज वैल्यू 1 लाख की है ना? तो क्या मिसिंग है यहाँ पर? शुरू में हमने मंथ्स इन फर्स्ट ईयर के बारे में बात करी थी, उससे हिंट लेकर सोचिए क्या मिसिंग है। Sir, 2 months का additional depreciation. 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अभी बाकी है, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पूरे 12 महीने के लिए एसेट को यूज नहीं किया है, सिर्फ 10 महीने के लिए यूज किया है। सो वी नीड एन एक्स्ट्रा रो। क्या करेंगे, हम एक रो 13th ईयर के लिए और बनाएंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस तो हमें पता है वैसा का वैसा ही उतर के आएगा। अब बात आती है SLN के फॉर्मूला की। मैं SLN का फॉर्मूला अगर यहाँ पे वैसा का वैसा ही उतारता हूं, तो ये पूरे 12 महीने का एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा रहा है। तो मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए यहाँ पर 13th ईयर के लिए? 2/12। राइट। बट आप ध्यान देंगे कि हम इस शीट को ऑटोमेट करना चाहते हैं।
अगर हमने यहां पर लिख दिया स्टार 2/12, तो अगर आगे चल के यूजर ने कहा कि नहीं मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 10 नहीं है 6 है, तो ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 को क्या कर दिया है, हार्ड कोड कर दिया है, हमने फॉर्मूला में 2 ही लिख दिया है। तो ऐसा कैसे करें कि एक्सेल अपने आप मंथ्स इन फर्स्ट ईयर को देखकर लास्ट ईयर का मंथ्स कैलकुलेट कर ले? क्या कैलकुलेशन करी जा सकती है? 2 आपको कैसे मिला आंसर? गिवन था, अज्यूम करा था वो। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट स्टेप। 12 minus the months in first year. यस, दैट इज द स्टेप। देखो क्या होता है ना, हम चीजों को ऐसे नहीं समझ पाते कि हमने क्या स्टेप फॉलो किया, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत फास्ट काम करता है। तो जैसे ही आपने 10 मंथ्स इन फर्स्ट ईयर देखा 10 है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया लास्ट ईयर के लिए 2 महीने होगा, राइट? बट योर ब्रेन डिड दैट कैलकुलेशन फॉर यू, इट डिड 12 minus 10, ठीक है? कंप्यूटर को समझाने के लिए कि भाई 2 कैसे कैलकुलेट हुआ, उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा दैट हाउ यू केम टू द आंसर ऑफ 2। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को नहीं बताएंगे तो कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि 2 कैसे आया। कंप्यूटर को लगेगा शायद हमेशा ही 2 होता है लास्ट ईयर में, राइट? सो व्हाट डू वी हैव टू डू हियर? 2 की जगह पे क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ? लाइफ ऑफ एसेट माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर। लाइफ ऑफ एसेट कहाँ से आया दोस्त? लाइफ ऑफ एसेट की कहानी अलग चल रही है। महीने कैसे कैलकुलेट किए? 12 minus 10 ना, तो 12 मंथ। हाँ, सो 12 माइनस हम मंथ्स इन फर्स्ट ईयर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि साल में 12 महीने ही रहने वाले हैं, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, राइट? सो दैट इज व्हाई वी विल राइट 12 माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर, C7, ठीक है? ये बात सबको समझ में आई है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आगे चल के अगर हमने जो चॉइस प्रोवाइड करी है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर वाले सेल में कि आप 1 से लेकर 12 की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, वो अगर किसी ने एक्सरसाइज करी, सो देन वी विल हैव अ डिफरेंट आंसर। हमारा आंसर 2 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। तो उसको एकोमोडेट करने के लिए वी डिड 12 minus C7, यानी मंथ्स इन फर्स्ट ईयर पहले साल में लग गए, कैलकुलेट हो गए हमने, क्योंकि वहां पे भी C7 यूज किया था एडजस्टमेंट के लिए। तो यहां हम करेंगे 12 minus C7। So now you are seeing 12,500 as the depreciation charged in the last year। और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए वही ड्रैग कर देंगे नीचे, तो हमारे पास सैल्वेज वैल्यू के बराबर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। This is how you will prepare the fixed account for SLN method, ठीक है? तो यहां पे अगर नोटिस करेंगे तो हमने 2 रोज में स्पेशल ट्रीटमेंट किया है। ओपनिंग और क्लोजिंग रो में हमने स्पेशल ट्रीटमेंट किया है, बाकी के जो बीच वाले रोज थे वहां पर हमने नॉर्मल एग्जीक्यूशन किया है। तो इन जो मैंने ग्रीन में मार्क करी है रोज, उनके फॉर्मूला सिमिलर हैं। जो मैंने फर्स्ट और 13th रो के लिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनाया है, उनमें हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ 5 months, तो ऑटोमेटिकली इट विल एडजस्ट द डेप्रिसिएशन। इफ आई डू इट फॉर इवन 1 year,
1 month, then it will automatically adjust. Okay, everybody is clear on this? Right? चलो अब बात करते हैं डीबी मेथड की, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज करने के लिए हम वापस से इतना पोर्शन कॉपी कर लेते हैं। आई गेस ज्यादा छोटा हो गया। लेट मी पुट इट हियर। So now we have to calculate the fixed account, fixed asset account as per the DB method. वापस हमको सारे के सारे स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, बस SLN की जगह पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। और इस मेथड में जब हम डीबी मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं, आपको एक एडवांटेज होता है जो कि मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। सो वी फर्स्ट स्टार्ट विद द नंबर ऑफ ईयर्स दैट वी नीड। तो कितने साल के लिए चाहिए हमें ईयर्स में नंबर्स? 12 पक्का? ऊपर वाली टेबल में तो 12 पे एक बात बनी नहीं थी, नीचे वाले में बनेगी? राइट? क्योंकि देखो आपके मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में जब तक 12 नहीं आ रहा है, 12 महीने के लिए जब तक आपने एसेट को यूज नहीं किया, तब तक आपको 1 साल एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा याद रखिए, लाइफ ऑफ एसेट अगर आपकी कोई एक वैल्यू है और मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में आपकी वैल्यू 1 से 11 के बीच में है, तो मतलब है कि आपको एक एक्स्ट्रा साल चाहिए होगा। तो हम इसको 13 तक स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी गो विद द ओपनिंग बैलेंस। हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया। नाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला डीबी। अब डीबी में कितने इनपुट नजर आ रहे हैं? How many inputs do we need for the DB function? 4 Sure? फिर से देख लो, 5 मंथ वो मंथ भी ऐड हो रहा है। सो कॉस्ट, सैल्वेज और लाइफ तीनों तो SLN में भी जाते थे। डीबी वाले फॉर्मूला में हमको 2 इनपुट और देने पड़ेंगे। हमें बताना होगा एक्सेल को कि कौन सा पीरियड चल रहा है और मंथ्स इन फर्स्ट ईयर कितने थे। तो डीबी वाला फॉर्मूला इस वजह से थोड़ा एडवांटेजेस है, क्योंकि ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स अपने आप कर देता है। हमें मैन्युअली इस फॉर्मूला को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसने मंथ्स इन फर्स्ट ईयर भी कंसिडर किया है और किस पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी बताया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनपुट डालना शुरू करते हैं। कॉस्ट को लिखेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करने वाले हैं। सैल्वेज वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। फिर लाइफ को सेलेक्ट करिए, उसको भी फ्रीज कर दीजिए। पीरियड चेंज होने वाला है, ये अभी हम फर्स्ट पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे
जहां 1 लिखा हुआ है उस सेल को सोर्स करेंगे यहां पर, दैट इज E20। एंड लास्ट इनपुट है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर, यानी कि जहां पे हमने मंथ इन फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया हुआ है उस सेल को सेलेक्ट करके वी आर गोइंग टू फ्रीज इट, सो दैट मेक्स इट C17। दिस इज योर इंटायर DB फॉर्मूला। So it will automatically calculate कि फर्स्ट ईयर में मंथ्स इन फर्स्ट ईयर के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन होगा। आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल। एंड नाउ चूंकि हमें ओपनिंग बैलेंस सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से निकालना है, तो हमको कोशिश क्या करनी है, हमें इसे ऑटोमेट करने की कोशिश करनी है ताकि हम फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर सकें। सो वी विल डिजाइन द सेकेंड रो ऑल्सो। डेप्रिसिएशन को ऐसा का ऐसा ही उतार लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस को ऐसा का ऐसा ही उतार लीजिए। नाउ यू कैन ड्रैग इट टू 13 and that is how simply you can create the fixed asset account as per the diminishing balance method। तो हमारी सैलवेज वैल्यू 1 लाख के पास पहुंच रही है, राइट? यस और नो? Yes. यस। कभी भी आपकी सैलवेज वैल्यू जितना क्लीन तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड में 1 लाख आ जाता है, उतना क्लीन तरीके से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में नहीं आएगा, राइट? क्योंकि डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग बैलेंस। All right, so this is how you can calculate the diminishing balance method। इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, इसमें सेकेंड रो से लेकर लास्ट रो तक हमने सेम फॉर्मूलाज यूज करे, बट पहली रो के लिए क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस यहां से सोर्स किया था, तो हमको इसको थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी में डालना होगा। तो नाउ एज यू कैन सी, हमने दोनों मेथड के हिसाब से यहाँ पे अपना जो शीट है वो कंप्लीट कर लिया। नाउ यू कैन सी बोथ द मेथड्स टुगेदर। कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। अगला काम क्या है हमारा, एक्सेल शीट को फाइनल करने के से पहले सर अकाउंट अमाउंट का फॉर्मेटिंग। तो हमें पता है ये जितने भी तीनों कॉलम हैं, नीचे के तीनों कॉलम, सबको साथ में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सेल और हैं जहाँ पे अमाउंट्स लिखी हुई हैं, तो सबको हमने कंट्रोल की प्रेस करके साथ में सेलेक्ट कर लिया। अब होम टैब पे जाइए और अकाउंटिंग फॉर्मेट चूज कर लीजिए, आपके सारे अमाउंट्स एक साथ फॉर्मेट हो जाएंगे। दिस इज डन। अगला स्टेप क्या है, अमाउंट फॉर्मेट हो गई। और मैं टेस्ट अब हमें शेडिंग और बॉर्डर्स के ऊपर ध्यान देना है। हमें सबसे पहले तो सारे के सारी शीट में बॉर्डर्स प्रोवाइड करने हैं, जहां जहां बॉर्डर्स की जरूरत है। सो वी प्रोवाइड द बॉर्डर्स, देन यू हैव टू ऐड अ कलर। And now we have the sheet ready।
you can do some more formatting. सेल स्टाइल में जाके हम इसको टाइटल दे देते हैं, कंपैरेटिव डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना दिया है हमने। फिक्स्ड एसेट अकाउंट को आप एक और स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं हेडिंग 1 का, और यहाँ पर डीबी अकाउंट को भी आप एक हेडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन create your Excel sheet of comparative depreciation schedule. ठीक है? Now इस शीट में ऑटोमेशन का लास्ट स्टेप बाकी है। अब हमने मोस्टली तो ऑटोमेशन कर रखा है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ एसेट चेंज करूंगा, मैं इसको 10 लाख की जगह पे अगर 12 लाख कर देता हूं, तो अपने आप 12 लाख के हिसाब से टेबल बन जाएगी। अगर मैं सैलवेज वैल्यू को चेंज करके 1 लाख की जगह 2 लाख कर देता हूं, तो अपने आप वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मंथ्स इन फर्स्ट ईयर को मैं आगे पीछे कर सकता हूं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। कौन से केस में प्रॉब्लम आएगी हमें मंथ्स इन फर्स्ट ईयर अगर हमने सेलेक्ट किया तो? When do you think we will face a problem if I select a value in months in first year? शीट में 12 सेलेक्ट करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लास्ट रो में वो एक एरर दिखा रहा है। यहां पे भी उसने डैश दिखा दिया है, राइट? तो मंथ्स इन फर्स्ट ईयर हम फुल्ली ऑटोमेट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी टेबल में अब एक एरर दिखाने लग गया है। हमारी टेबल्स में एरर्स नहीं आनी चाहिए। तो अभी के लिए चूंकि हम पहला कंपैरेटिव डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि फुल्ली ऑटोमेट करना है। तो हमें पता चल गया है कि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर जो है वो पूरी तरीके से चेंजेबल नहीं है। ठीक है? जब हम इसमें 12 सेलेक्ट करते हैं तो एरर आता है। 10 सेलेक्ट करिए, काम करेगा। कोई और वैल्यू सेलेक्ट करिए, 1 से लेकर 11, काम करेगा। बट व्हेन वी सेलेक्ट 12 इट शोज एन एरर। ऑलराइट? Another cell that we have a problem with is life of asset. अभी हमने 12 साल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं इसको चेंज करके 12 साल की जगह पे 10 साल कर देता हूं अगर, तो शीट में एरर्स नजर आ रहे हैं। दोनों शीट में हमको प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। पहली वाली में जो SLN मेथड वाला जो अकाउंट बनाया था हमने, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्लोजिंग बैलेंस 0। क्लोजिंग बैलेंस 13वें साल तक कैलकुलेट हो रहा है। अब इफेक्टिव लाइफ ही 10 साल की है, तो 11वें साल में मैक्सिमम क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख पे आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 11th ईयर में भी हमें 1 लाख क्यों नजर नहीं आ रहा? सॉरी, 2 लाख क्यों नजर नहीं आ रहा? Who knows the answer? 11th ईयर में हमें यहाँ पर 2 लाख नजर आना चाहिए था ना, क्यों नहीं नजर आ रहा? उसने पूरे साल का कैलकुलेट कर लिया। पूरे साल का कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमने क्या किया, हमने 13वें साल पे ही एडजस्टमेंट डाला हुआ है। देख रहे हैं, 13वें साल के फॉर्मूले में हमने एडजस्टमेंट डाला हुआ है, बट बात तो 13 तक पहुंची नहीं, 11वें पे ही खत्म हो रही है, और 11वें में ये पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगा रहा है ना? तो अभी चूंकि हमने पहली शीट बनाई है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बस यहाँ पर मार्किंग कर देंगे कि भैया
ये जो सेल है, जो लाइफ ऑफ एसेट वाला सेल है, उसमें आप 12 ही लिखा रहने दीजिए, उसको चेंज मत करिएगा, नहीं तो शीट में गड़बड़ हो जाएगी। आगे चल के हमको ऐसी शीट डिजाइन करनी है कि लाइफ ऑफ एसेट भी अगर हम चेंज करें तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है, तो आज जो हमने शीट बनाई है उसमें हमने 2-3 चीजें सीखी है। पहले तो हमने सीखा है, कुछ नए फॉर्मूलाज सीखे हैं एक्सेल के। कौन कौन से हैं? कौन कौन से नए फॉर्मूला सीख लिए आज? फॉर्मूलाज हमने सीखे हैं SLN और DB। और क्या सीखा आपने? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एडजस्टमेंट करना सीखा। दैट वाज न्यू। यस, Yes, sir. बाकी सारा Yes, तो sir. ओपनिंग, डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस निकालना तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, है ना। आपको अगर मैं बोलूं कि विदाउट यूजिंग SLN DB आप डेप्रिसिएशन का एक शेड्यूल बना दो तो आप लोग बना दोगे एक्सेल में, राइट। बट टू मेक इट ऑटोमेटेड, that is what we are trying to achieve in Excel. So we learned adjustment for SLN account in first and last year. ठीक है, तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को यहीं पर ही खत्म करते हैं। आज के हमारे जो लर्निंग्स हैं वो ये 2 हैं, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पहले भी करी हुई है। तो इस शीट को कोशिश करिए कि आप लोग भी बना सकें। कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे अगली क्लास में बात करिए, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस। ओके, Okay, sir. ओके, so let us end the class today.